السلام علیکم ناظرین، فور ٹی وی خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ کے سی آر اپنے بڑک پن کو برقرار رکھنے میں ناکام، اپنے طریقہ کار کو تبدیل کریں۔ اندرما مکانات کے ایپ کا افتتاح، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا خطاب۔ ہریش راؤ، کوشک ریڈی اور دیگر قائدین گرفتار۔ کچی باولی پولیس اسٹیشن پر حالات کشیدہ۔ پنجا گٹا کیس میں ہریش راؤ کو راحت، عدالت نے گرفتار نہ کرنے کی دی ہدایت۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کا لوگو جاری، شہر کو آلودگی سے پاک بنانے اسکریپ پالیسی لائی گئی، وزیر اعلیٰ کا خطاب۔ اور گانجا فروخت کرنے والے شخص نے بھیک مانگنے والے معذور کا کیا قتل، پولیس مصروف تحقیقات۔ اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپر سے رابطہ کریں۔ کیو میکس دے رہا ہے ریڈی بینکٹ ہال، 3 فلورز پر مشتمل، 5th، 6th، 7th فلور پر 6,000 کا 18,000 اسکوائر فٹ کا ریڈی میڈ بینکٹ ہال۔ آج ہی رجسٹری کرائیں اور آج سے ہی فنکشنز کی بکنگ کریں، وہ بھی بہترین پرائم لوکیشن ٹولی چوکی پر۔ منگنی، شادی، ولیمہ، برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسری جیسی دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن کیو میکس کوہینور بینکٹ ہال، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر، ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، ڈالر ہلز الکاپور روڈ، موسا انکلیو، ایس اے کالونی ٹولی چوکی، MSN ڈائمنڈ ہلز کالونی ٹولی چوکی، ایزل ریزیڈینسی ایس اے کالونی ٹولی چوکی، سرین ہائٹس گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی، دارالامن ہیپی ہومز کالونی الکاپور، دارالخیر سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ڈیلائٹ سوٹ beside سنا انکلیو ٹولی چوکی، اکبر انکلیو گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی۔ انکمپرومائزڈ کوالٹی کنسٹرکشنز، آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے۔ 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز معاون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن beside رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اس مہنگائی کے دور میں سونا خریدنا ہوا آسان۔ جوہری گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلیٹینم ٹولی چوکی لایا ہے گولڈ بچت اسکیم۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے اب سونا خریدیں 11 مہینے کی آسان اقساط پر، اور 12ویں مہینے میں اپنا سونا گھر لے جائیں ایوریج گولڈ ریٹ پر، بنا کوئی ایکسٹرا چارج اور 0% انٹرسٹ کے ساتھ۔ 916 ہال مارک کی جیولری، نو ویسٹیج، نو میکنگ چارجز کے ساتھ۔ اب ہوگی بچت پیسوں کی اور گھر آئے گا سونا، وہ بھی آسان اقساط پر۔ آپ کا بھروسہ، ہماری پہچان، جوہری، crafted just for you، گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ اندرما اندالوک کے تحت 5 سال میں 25 لاکھ مکانات فراہم کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے آج اندرما اندالو موبائل ایپ کو جاری کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اندرما امکنہ اسکیم 10,000 روپے سے شروع کی گئی تھی اور یہ آج 5 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ ہر گھر کو ان کے مطابق گھر کی تعمیر کے لیے 5 لاکھ روپے مالی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ عزت و وقار کے ساتھ جینا ہر کسی کا خواب ہوتا ہے اور اس خواب کو پورا کرنے کے لیے گھر کی ضرورت ہوتی ہے۔ کانگریس حکومت کا یہی نظریہ ہے کہ سب کو اچھا مکان اور اچھے کپڑے ملیں۔ پہلے مرحلے میں 4.5 لاکھ مکانات کی تعمیر کے لیے انتظامی اجازت دی گئی ہے۔ ہر حلقے میں 3,500 مکانات تعمیر کیے جائیں گے۔
पहले मरहले में सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वालों को तरजीह दी जाएगी। खास तौर पर पहले मरहले में SC/ST ट्रांसजेंडर्स और गरीब तरीन खानदान शामिल रहेंगे। वजीर आला ने बताया कि कांग्रेस के 2004 से 2014 तक इख्तिदार में 25,46,058 मकानात तामीर किए गए थे। उन्होंने साबिका हुकूमतों के दौर में तामीर किए गए मकानों के भी आदाद शुमार पेश किए। उन्होंने बताया कि BRS हुकूमत की 2014 से 2024 तक 1,60,705 मकानात तामीर किए गए। इस मौके पर रियासती वज़रा बट्टी विक्रमार्का, P श्रीनिवास रेड्डी, पूनम प्रभाकर, सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़, मेयर GHMC विजय लक्ष्मी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। కాలనీలను ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పట్టాలు ఇచ్చి వాళ్ళ ఆత్మ గౌరవాన్ని నిలబెట్టి వాళ్ళు సొంత ఇంటి కలను నెరవేర్చే విధంగా ఇండ్లు కట్టుకోవడానికి అన్ని రకాలుగా నాకు తెలిసి 10,000 రూపాయలతో మొదలుపెట్టి మొదట్లో 4 తాటాకులు 10 వెదర్ బొంగులు 4,000 రూపాయల నగదుతో మొదలైన ఇందిరమ్మ ఇల్లు కాలక్రమేణా రాజశేఖర రెడ్డి గారు వచ్చే వరకు 1,25,000కు పెరుగుకుంటూ వచ్చింది। ఈరోజు ప్రజాప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత 5 లక్షల రూపాయలకు పెంచడం జరిగింది। ఎందుకంటే ఈరోజు పెరిగిన ధరలు పేదవాడి అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రతి పేదవాడికి 5 లక్షల రూపాయలు ఉచితంగా ఇచ్చి వాళ్ళకి ఇండ్లు కట్టుకోవడానికి ప్రభుత్వం అండగా నిలబడాలన్న ఆలోచనతోని ఈ పథకాన్ని తీసుకొచ్చినాం। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि KCR अपने बड़कपन को कायम रखने में नाकाम हो गए हैं। इंदिरम्मा इंदलू प्रोग्राम से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि अपोजिशन लीडर की निश्चित खाली रहना रियासत के लिए अच्छा नहीं है। KCR असेंबली आकर हुकूमत से सवाल करें। रियासत में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात क्यों पैदा हो गए हैं। उन्होंने कहा कि किसी को तनकीद किए बगैर मसाइल को एक एक हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके लिए अपोजिशन थोड़ा वक्त देकर ताउन करे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में YS राजशेखर रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू मसाइल पर बहस करते थे, हुकूमत को राय मशवरे दिया करते थे और जो खामियां थीं इसको सुधार लेते थे। उन्होंने कहा कि अब तो भी KCR अपने तरीक़ेकार को तब्दील करें। BRS पार्टी के लीडर हरीश राव को ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार करते हुए गच्चीबावली पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया है। जुमेरात की सुबह BRS लीडर और MLA कौशिक रेड्डी की क़यामगाह पर पुलिस पहुंच चुकी थी। पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में फोन टैपिंग के दर्ज किए गए केस में तहकीकात के लिए हरीश राव को गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान पुलिस और हरीश राव के दरमियान नोक झोंक और धक्कम-पेल देखी गई। हरीश राव पुलिस अहदेदार से ये मुखातिब हुए देखे गए कि यह बात याद रखना हर दिन इतवार नहीं होता। इस दौरान तेलंगाना हाई कोर्ट ने हरीश राव के खिलाफ पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में दर्ज केस के सिलसिले में राहत दी है और इस केस में हरीश राव को गिरफ्तार न करने की हिदायत दी है। इस मामले में तहकीकात की जा सकती हैं। वाज़ेह रहे कि फ़ोन टैपिंग के मामले में हरीश राव के खिलाफ पंजागुट्टा के बशमूल मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किए गए हैं। हरीश राव की गिरफ्तारी के बाद BRS कायदीन ने गच्चीबावली पुलिस स्टेशन पर जमा होकर नारेबाजी की। शाम में के कविता भी गच्चीबावली पुलिस स्टेशन पहुंच गईं। गच्चीबावली पुलिस स्टेशन पर देखते देखते पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद जमा हो गई और रेवंत रेड्डी के खिलाफ नारेबाजी की गई, जिससे हालात कशीदा देखे गए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने महकमे ट्रांसपोर्ट के लिए लोगो जारी किया। अवामी हुकूमत के 1 साल मुकम्मल होने पर महकमे ट्रांसपोर्ट की जानिब से मुनक्किद किए गए प्रोग्राम में वज़ीर आला ने तेलंगाना में RTC की कामयाबी पर मबनी ब्रोचर भी जारी किया। इसके अलावा तेलंगाना RTC में फौत होने वाले RTC मुलाजिमीन के ख़ानदान वालों को मौरसी जायदाद के तकर्रुरनामे हवाले किए। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि 6 गारंटी के हिस्से के तौर पर गुज़िश्ता साल 9 दिसंबर से RTC में ख़वातीन को मुफ्त सफ़र की सहूलत दी है। 11 माह में 115 करोड़ ख़वातीन ने मुफ्त सफ़र किया है। उन्होंने कहा कि शहर में आलूदगी पर काबू पाने में ट्रांसपोर्ट का अहम रोल है। मियाद ख़त्म होने वाली गाड़ियों को स्क्रैप में डालने की जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट महकमे की है। शहर को आलूदगी से पाक रखने के लिए हुकूमत ने स्क्रैप पॉलिसी वज़ा की है। उन्होंने कहा कि मूसा नदी को गोदावरी से मरबूत करते हुए तरक्की दी जाएगी। बाज़ औक़ात सख्त फैसले लेने पड़ते हैं। हैदराबाद से आलूदगी को ख़त्म करने की ज़रूरत है। हैदराबाद को आलमी तर्ज का शहर बनाने के लिए हम सब मिलकर कोशिश करें। ఏవైతే 6 గ్యారెంటీలు మేము ప్రజలకు ఇచ్చినామో మా 6 గ్యారెంటీల బ్రాండ్ అంబాసిడర్లు
మా పార్టీ కార్యకర్తలతో పోటీ పడి ఆర్టీసీ కండక్టర్లు, డ్రైవర్లు, బస్సు ఎక్కినోళ్లకు, బస్సు దిగినోళ్లకు 6 గ్యారంటీల గురించి వివరించి ప్రజాపాలన కావాలని కోరుకున్నారు. కాబట్టే ఆనాడు 6 గ్యారంటీల బ్రాండ్ అంబాసిడర్లుగా ఆర్టీసీ కార్మికులు తమ బాధ్యతను నెరవేర్చిండ్రు. కాబట్టి ఈనాడు ఈ ప్రభుత్వం విజయం సాధించింది. విజయం సాధించిన ప్రభుత్వంలో కార్మికులను ఆదుకోవాలని, ఇదే కాదు ఈరోజు గ్రేటర్ హైదరాబాదే కాదు, ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు నుంచి మొత్తం ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ఇన్సైడ్ ఉన్న నగరం హైదరాబాద్ కావచ్చు, సికింద్రాబాద్ కావచ్చు, మల్కాజ్గిరి కావచ్చు, చేవెళ్ళ పార్లమెంట్ కావచ్చు, కొంత మెదక్ పార్లమెంటు ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు లోపల ఇది మొత్తం ఒక మహానగరం. बीआरएस लीडर्स की गिरफ्तारियों का आगाज कौशिक रेड्डी से हुआ। कौशिक रेड्डी ने गुज़िश्ता रोज उनके फोन टैप होने का इल्जाम लगाते हुए बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत की थी और इस दौरान पुलिस अहदेदारों से उनकी मुबैना तलकलामी के बाइस उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया था और आज सुबह से पुलिस कौशिक रेड्डी के मकान के पास ही मौजूद थी। कौशिक रेड्डी की गिरफ्तारी के बाद हरीश राव और जगदीश्वर रेड्डी को गिरफ्तार किया गया। इसी दौरान साबिक वजीर जगदीश्वर रेड्डी और सीनियर लीडर राकेश रेड्डी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों लीडर्स को पुलिस के साथ बहस तकरार करते हुए देखा गया। बाद में पुलिस दोनों लीडर्स को गच्चीबौली पुलिस स्टेशन लेकर गई। बीआरएस पार्टी की तरफ से पार्टी लीडर्स की गिरफ्तारी को लेकर रेवंत रेड्डी हुकूमत पर बरहमी का इजहार किया गया। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने कहा कि हुकूमत की गलतियों पर सवाल करने पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। हुकूमत से वादों पर सवाल करने पर गिरफ्तार करते हुए मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। इक़ामती स्कूल्स, आराजी मामले, इनेदामी कार्रवाई में रुकावट बनने पर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। अवाम के खिलाफ केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस के सूटकेस गिरफ्तारियां हमारी हो रही हैं और उन्होंने कहा कि हमारे कायदीन की गिरफ्तारी गैर जमहूरी अमल है, उनको फौरन रिहा करने का केटीआर ने मुतालबा किया। बीआरएस पार्टी की रुकन काउंसिल के कविता हरीश राव की गिरफ्तारी पर गच्चीबौली पुलिस स्टेशन पहुंच गईं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये हुकूमत के पास शिकायत सुनने की हिम्मत भी नहीं है। उन्होंने कहा कि पी कौशिक रेड्डी के मुकदमे से दस्तबरदारी इख्तियार करें। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में इमरजेंसी जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। इंद्रमा राज्यम नहीं, पुलिस राज्यम दिखाई दे रहा है। गैर कानूनी मुकदमात को फौरन वापस लें। उन्होंने गिरफ्तार किए गए कायदीन को फौरी रिहा करने का मुतालबा किया। మరి వారిని చూడడానికి వెళ్ళిన మా సీనియర్ శాసనసభ్యులందరినీ కూడా ఇవాళ జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారిని కావచ్చు, హరీష్ అన్నన్ కావచ్చు, మరి ఇంకా చాలా మంది శాసనసభ్యులు, వివేకన్న గారు, అట్లానే మా సంజయ్ అందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేయడం చాలా దారుణం. మేము ఇవాళ ఖండిస్తా ఉన్నాం. ఇందిరమ్మ రాజ్యం అంటే ఎమర్జెన్సీ రాజ్యాన్ని కల్పించేటట్టుగా ఉంది. ఇందిరమ్మ రాజ్యం కాదు, ఇవాళ పోలీస్ రాజ్యం నడుస్తా ఉంది తెలంగాణలో. అరెస్టులు, ఎమ్మెల్యేలను అరెస్ట్ చేయడం, కంప్లైంట్ చేయడానికి వచ్చినటువంటి వ్యక్తుల దగ్గర కంప్లైంట్ తీసుకునేటటువంటి ధైర్యం లేనటువంటి ప్రభుత్వం ఉల్టా మళ్ళా ఎమ్మెల్యేల మీద కేసులు పెట్టడం అంటే ఇది చాలా అన్యాయం. తెలంగాణ సమాజం ఎప్పుడు కూడా అణచివేతను ఎక్కువ రోజులు భరించదు. మీరు ఇట్లానే మా గొంతు నొక్కాలని ప్రయత్నం చేస్తే ప్రజలు తిరగబడే రోజు వస్తుందని చెప్పి ఈ ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిక చేస్తూ పాడి కౌశిక్ రెడ్డి గారి పైన పెడుతున్నటువంటి అనవసరపు కేసులు, అక్రమ కేసుల్ని వెనక్కి తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ప్రివెంటివ్ అరెస్ట్ చేసినటువంటి మా బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలందరినీ కూడా తక్షణమే రిలీజ్ చేయాలని కూడా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. तेलंगाना पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि पार्टी इन्हराफ के खिलाफ है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने हुक्मरानी का 1 साल मुकम्मल कर लिया है। कांग्रेस इन्हराफ की सियासत के खिलाफ है। माजी में बीआरएस पार्टी ने कांग्रेस कायदीन को डरा धमका कर इन्हराफ किया था। उन्होंने कहा कि बाज बीआरएस अरकान असम्बली कांग्रेस पार्टी के राब्ते में हैं। उन्होंने कहा कि बाज बीआरएस अरकान असम्बली पार्टी में शामिल होंगे। उन्होंने कौशिक रेड्डी और हरीश राव के मामले में कहा कि कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेंगे तो खामोश नहीं बैठेंगे। कानून किसी का रिश्तेदार नहीं है। जमहूरी अंदाज में एहतजाज करने का हक सबको है। कौशिक रेड्डी ने जो जबान इस्तेमाल की है मीडिया के जरिए सब देख चुके हैं। इससे पहले बीआरएस पार्टी के साबिक रुकन अताराम शक्कू कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। महेश कुमार गौड़ ने उनको पार्टी का खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में तेलंगाना तल्ली का मुजस्समा 9 दिसंबर को नस्ब किया जाने वाला है। यह मुजस्समा पेद्दा अंबरपेट में तैयार किया गया था और जुमेरात को इसे सेक्रेटेरिएट में नस्ब कर दिया गया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 9 दिसंबर को इसकी नकाब कुशाई अंजाम देंगे। वाज़ेह है कि तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे को लेकर बीआरएस और कांग्रेस के दरमियान बयानबाजियां भी जारी हैं।
चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल के परेड ग्राउंड पर जेल ट्रेनी वार्डन्स की पासिंग आउट परेड मुनक्किद हुई। इस परेड में रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से जेल महकमे में 92 जेल वार्डन्स का तकर्रुर हुआ है, जिनमें 84 मर्द और 8 खवातीन शामिल हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार के जेल वार्डन्स की भी यहीं तरबियत हुई है। रियासती वजीर ने तरबियत के दौरान बेहतरीन मुजाहरा करने वालों को तमगों से नवाजा। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने तरबियत मुकम्मल करने वाले वार्डन्स को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि जेल का मकसद सिर्फ कैदियों को सजा देना नहीं बल्कि उनके किरदार में बेहतरी लाना है। जेल कैदियों की सलाहियतों को निखारने का भी जरिया होता है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की तरफ से जेल महकमे में कई इस्लाहात लाई गई हैं। कैदियों को अच्छा शहरी बनाने के लिए तेलंगाना हुकूमत इक़दामात कर रही है। सज़ा मुकम्मल होने के बाद जब कैदी वापस समाज में जाएंगे तो उन्हें इज्जत की नज़र से देखा जाना चाहिए। इनमें इस तरह का किरदार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कैदियों को मुख्तलिफ हुनर सिखाए जा रहे हैं और उनके स्टॉल्स भी लगाए जा रहे हैं। कैदी अपनी सज़ा के बाद इस हुनर से एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस मौके पर रियासती डायरेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर जितेंद्र, महकमे जेल के अहदेदारों के अलावा मुतल्लिका कॉरपोरेटर अब्दुलसलाम शाहिद भी मौजूद थे। सरकार रियासत में जेल डिपार्टमेंट को भी स्ट्रेंथन करके आने वाला दिन में एक कैदी बोले तो सिर्फ पनिशमेंट फेस करने के लिए नहीं है, उसकी भी थोड़ा संस्कार सिखा के उसकी तब जो भी है उसको आने आफ्टर जो पनिशमेंट का टाइम होने के बाद फिर सोसाइटी में आके फिर कैदी ना बने, उसको ऐसा जेल डिपार्टमेंट थोड़ा रिफॉर्म्स ला रहा है। और आने वाला दिन में जेल डिपार्टमेंट और भी अच्छा रिफॉर्म्स करके कैदी के लिए भी सोसाइटी में उसको जिंदगी जीने के लिए ऐसे एक प्रोग्राम बना रहे। और जो आज उसके लिए तेलंगाना सरकार आने के बाद नया रिक्रूटमेंट बने, उनका पासिंग आउट परेड हुआ, उन लोगों को भी हम मुबारकबाद देते हैं। आने वाला दिन में जेल शाखा का जेल डिपार्टमेंट का अच्छा कार्यकर बना के जेल डिपार्टमेंट का नाम भी रोशन करे, यह हम उम्मीद करते हैं। बाबरी मस्जिद की शहादत को 32 साल हो रहे हैं। ये मस्जिद सिर्फ एक इमारत ही नहीं बल्कि मुल्क में दस्तूर और कानून की हुक्मरानी, मुसलमानों की इज्जत व आबरू से इबारत है। अयोध्या में शहीद की गई इस तारीखी मस्जिद की याद में ईदगाह हज़रत उजाले शाह रहमतुल्लाह अलैह सईदाबाद हैदराबाद में ख़वातीन व तालिबात का एक दुआया इज्तिमा मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें इस मस्जिद की बाजियाबी के लिए रिक़्क़तंगेज़ दुआएँ की गईं और मुसलमानान हिंद से अपील की गई है कि वो बाबरी मस्जिद को उसी मुकाम पर दोबारा तामीर तक अपनी जदोजहद जारी रखें। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मुल्क के 20 करोड़ मुसलमानों ने हुकूमत, अदलिया, इंतज़ामिया के फैसले को कबूल कर लिया था, जिसका ये नतीजा निकल रहा है कि मुल्क में मस्जिदें, खानकाहें, दरगाहें और मुसलमानों के दीगर मजहबी मकामात महफूज नहीं हैं। आए दिन इन पर झूठे दावे मामूल बन चुके हैं। इस इज्तिमा के कन्वेनर ने बताया कि मुसलमानों के लिए बाबरी मस्जिद ता क़यामत मस्जिद ही रहेगी। इसके मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं हो सकती और इसे कोई नहीं बदल सकता। उन्होंने यह भी कहा कि अपनी मसाजिद, खानकाहों और दरगाहों की हिफाजत के लिए अगर कुर्बानियों की ज़रूरत पेश आए तो इसके लिए तैयार रहना होगा। सदर मजलिस और रुकने पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकने असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मेराज ने महकमे आबरसानी के जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर के हमराह एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने हल्का असम्बली याकूतपुरा के तरक्याती कामों की तकमील और मियारी काम को मुकर्ररा वक्त के अंदर पूरा करने पर जोर दिया। इजलास में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के गुत्तेदारों के अलावा महकमे आबरसानी के अहदेदारों ने भी शिरकत की। जाफर हुसैन मेराज ने तरक्याती कामों को तरजीही बुनियाद पर जल्द शुरू करने और मुकर्ररा वक्त पर पूरा करने को कहा है। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का असम्बली बहादुरपुरा में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में रुकने असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग के हमरा महकमे बरक़ी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुशर्रफ फारूकी से मुलाकात की और उन्हें सदर मजलिस का एक मकतूब हवाले किया। इस मौके पर मजलिसी कायदीन ने मुख्तलिफ बरक़ी के तरक्याती कामों का जायजा लिया। तफसीलात के मुताबिक बरक़ी के कामों के लिए उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए की मंजूरी हासिल की है, जिससे ट्रांसफार्मर, मेंटेनेंस, केबल, पंच केबल और एक सब स्टेशन भी लगाने का
मंसूबा है, जिसकी जगह के लिए आराजी हासिल की जाएगी। रियासती वजीर सेहत दामोदराज नरसिम्हा ने संगारेड्डी कलेक्ट्रेट में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए कलेक्टर क्रांति वेल्लूर के हमरा एक कैंटीन का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि खवातीन को बाइख्तियार बनाते हुए उन्हें करोड़पति बनाने के लिए इंदिरा क्रांति और महिला शक्ति स्कीम प्रोग्राम का आगाज किया जा रहा है। उनका कहना है कि अवामी हुक्मरानी 2024 की फतह की तकरीबात के हिस्से के तौर पर इंदिरा क्रांति स्कीम, महिला शक्ति स्कीम के तहत मज़कूरा कैंटीन का इफ्तिताह अमल में आया। उनका कहना था कि इंदिरा क्रांति स्कीम का मकसद खवातीन की मुआशी आज़ादी में इजाफा करने का अलावा उनके लिए रोजगार के मौके पैदा करना है। बाबरी मस्जिद की शहादत को 32 साल होने जा रहे हैं। 6 दिसंबर बरोज़ जुमा को शहर में पुलिस की तरफ से बंदोबस्त किया जा रहा है। डीसीपी साउथ जोन स्नेहा मेहरा की निगरानी में साउथ जोन के तमाम पुलिस स्टेशन के हुदूद में पुलिस को चौकस रखा जा रहा है। चार मीनार, मक्का मस्जिद के अलावा दीगर मुकामात पर भी पुलिस के ज़ायद दस्तों को तैनात किया जा रहा है। इस सिलसिले में तमाम जोन में पुलिस के अहदेदारों को हिदायत भी जारी की गई हैं। शहर में अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 की गुज़िश्ता रोज रिलीज के पहले दिन भगदड़ में एक खातून हलाक और 2 बच्चे जख्मी हो गए। महलूक खातून की शनाख्त दिलसुख नगर की साकिन रेवती की हैसियत से की गई है। तफसीलात के मुताबिक आरटीसी क्रॉस रोड पर वाक़ संधिया थिएटर में फिल्म की नुमाइश हुई थी। अल्लू अर्जुन भी फिल्म देखने आए थे। इस दौरान वहां पर भगदड़ हुई। रेवती अपने शौहर भास्कर और 2 बच्चों 9 साला तेज और 7 साला सानवी के साथ फिल्म देखने के लिए आई थीं। भगदड़ में रेवती की मौत हो गई और इसका 9 साला बच्चा तेज जख्मी हुआ है, जिसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। उसकी हालत भी नाजुक बताई गई है। पुलिस की तरफ से इस वाक़े को लेकर संधिया थिएटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। चादरघाट पुलिस स्टेशन हुदूद के आजमपुरा में गांजे का कारोबार करने वाले के हाथों एक नौजवान का कत्ल हो गया। तफसीलात के मुताबिक 24 साला माजूर अखिल, जो भीख मांगकर अपनी जिंदगी गुजार रहा था, मुकामी गांजे का कारोबार करने वाले एक शख्स के साथ झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान गांजे का कारोबार करने वाले ने अखिल के सर पर वजनी पत्थर से हमला कर दिया, जिसकी वजह से अखिल मौके पर ही हलाक हो गया। मुकामी अवाम ने कहा कि खुलेआम गांजे की फरोख्ती उसकी असल वजह है। चादरघाट पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। इत्तला मिली है कि कत्ल करने वाला पुलिस हिरासत में है। मुकामी वाक़े पर साउथ ईस्ट डीसीपी कांतिलाल पाटिल सुभाष ने दौरा करते हुए तफसीलात हासिल की। साबिक रियासती वजीर टी हरीश राव को गिरफ्तार करने पर संगारेड्डी न्यू बस स्टैंड पर एहतजाज किया गया। इस मौके पर एहतजाजियों ने रियासती हुकूमत का अलामती पुतला जलाकर जबरदस्त नारेबाजी की। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6-6 हजार का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7
पावर बैकअप की भी सहूलत, 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 months इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। केसीआर अपने बड़कपन को बरकरार रखने में नाकाम, अपने तरीक़ेकार को तब्दील करें। इंद्रम्मा मकानात के ऐप का इफ्तिताह, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। हरीश राव, कौशिक रेड्डी और दीगर कायदीन गिरफ्तार। गच्चीबावली पुलिस स्टेशन पर हालात कशीदा। पंजागुट्टा केस में हरीश राव को राहत, अदालत ने गिरफ्तार न करने की दी हिदायत। महकमे ट्रांसपोर्ट का लोगो जारी, शहर को आलूदगी से पाक बनाने स्क्रैप पॉलिसी लाई गई, वजीर आला का खिताब। और गांजा फरोख्त करने वाले शख्स ने भीख मांगने वाले माजूर का किया कत्ल, पुलिस मसरूफे तहकीकात। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इसामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।